یہ ڈیٹا جو دیا گیا آپ کا نام ہے اس کے اندر، پھر رول نمبر ہے پرنٹڈ، ڈیٹ آف برتھ ہے، پیپر کوڈ ہے، میڈیم کیا ہے، سبجیکٹ کون سا ہے، سنٹر کیا ہے، یہ سب پرنٹڈ رہتا۔ ہال ٹکٹ میں جو ہے وہ سیم رہتا ہے۔ یہاں پر کبھی رانگ ہے تو انویلیڈ کو بولنا رانگ نہیں آتا، کیونکہ ہال ٹکٹ جب رانگ ہوتا تو آپ کے ہیڈ ماسٹر یہ لکھ کے بھیجاتے سینٹر کو خالی ہے۔ اور ایک اہم بات، یہ بار کوڈنگ پیپر رہتا، خالی نہیں، خالی بیٹھے بیٹھے کیا کرتے پین لے کے لکیرہ مارتے، یہ ڈیمیج نہیں کرنا یار، یہ خالی لینا کئی کو مارا رے کالا کر دے کر رکھا میں بھی 4 لائنہ مار دوں، نہیں، یہ بار کوڈنگ ہے، اس کے اوپر ہی آپ کا جو ہے پورا ڈاٹا رہتا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں برینی اسٹڈی سرکل یا یوسف سر میتھس یوٹیوب چینل۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر میتھس فزیکل سائنس کا فوبیا دور کرنے کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، میں بنا چکا ہوں، نمبر آف ویڈیوز کا آپ مشاہدہ کرے ہیں۔ یہ ویڈیوز اصل میرے اسٹوڈنٹ کی ہمت افزائی کے لیے بنا رہا ہوں میں، اور یہ مشورہ بھی میرے اسٹوڈنٹس ہی دیے ہیں، ہم دور رہے تھے سر، آپ تک آ نہیں سکتے، لہذا کم سے کم ویڈیوز بنا کے واٹس ایپ پہ ڈالو۔ بعض لوگ بولے واٹس ایپ کے جگہ آپ یوٹیوب پر ہی ڈال دو، پورے جو ہے اسٹیٹ کے اندر جہاں بھی بچے رہتے دیکھ لیتے، تو وہ مشورے کو میں پازیٹیو لے کر یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ جو اسٹوڈنٹس، جو ٹیچرز، جو پیرنٹس، جو ہیڈ ماسٹرز میرے ویڈیو شیئر کرے ہیں بچوں کے مفاد کے لیے، میں ان کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ بچوں کے مستقبل کے لیے پیرنٹس، ٹیچرز ہی کام کرتے ہیں اور پیرنٹس بھی کام کرتے ہیں، اس لیے آج کا جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں، ہاؤ ٹو فیس دا SSC ایگزامینیشن۔ بہت سارے بچوں کو OMR شیٹ، مین آنسر بکلیٹ، ایڈیشنل شیٹ کے بارے میں ڈاؤٹ رہتے، وہ ڈاؤٹ کے کلاریفیکیشن کو جو ہے دور کرنا، ڈاؤٹس دور کرنا، کلاریفیکیشن دینا، یہ مقصد ہے۔ یہ ہے OMR شیٹ، یہ OMR شیٹ کا زیراکس ہے، اس زیراکس پر ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ ریڈ کلر کے اندر OMR شیٹ آتا، اس کے اندر ٹوٹل 3 پارٹس ہوتے۔ میں یہاں پیپر فولڈ کر دے رہا ہوں، غور سے سنیے، یہ آپ کو اینوال ایگزام میں، سپلیمنٹری میں، ایڈوانس سپلیمنٹری، اسپیشل سپلیمنٹری، کون سا بھی ایگزام لکھو آپ، OMR شیٹ، آنسر شیٹ، ایڈیشنل شیٹ رہتا۔ ہم تلنگانہ میں ایگزام لکھ رہے، یہاں 4 پیجوں والا ایک مین آنسر بک لیٹ دیا جاتا۔ اگر آپ آندھرا پردیش میں ایگزام لکھ رہے ہیں تو 24 پیجز کا ایک بک لیٹ دیا جاتا، اس پہ لائننگ مارے ہوئے رہتے۔ ہمارے پاس تلنگانہ میں جو مین آنسر بک لیٹ دیا جاتا، مین آنسر بک لیٹ یہ ہے، ایڈیشنل شیٹ یہ ہے۔ ایک ایک کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے، ہال ٹکٹ آ چکے ہیں، ہال ٹکٹ لے کر آپ کیا کرنا، اس کے 1-2-3 زیراکس بنا لینا۔ روزانہ ہال ٹکٹ ایگزام سینٹر کو لے کر جانا ہے۔ ان کیس ہال ٹکٹ گم ہو جائے یا ایگزام کے اینڈ ٹائم پہ آپ کو دستیاب نہیں ہے، آپ زیراکس جو کرائے ہیں وہ بھی لے گئے، تب بھی آپ ایگزام سینٹر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایگزام سینٹر میں آپ کیا کرنا، جیسے ہی ہال ٹکٹ لے لیے ہیں، گھر سے جس وقت نکل رہے آپ ٹائم دیکھنا، ایگزام سینٹر جانے کے لیے کتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ سپوز آپ کے گھر سے ایگزام سینٹر جانے کے لیے 15 منٹ لگ رہے، آپ اور 20 منٹ پہلے گھر سے نکل جانا، اس لیے کہ جس وقت ایگزام شروع ہوتے اس وقت ایگزام ہال جانے کے پورے راستوں پہ ٹریفک بہت رہتی۔ ایک سینٹر پہ اگر 200-250 بچے ایگزام لکھ رہے، اس کے ساتھ گراؤنڈ میں جا کے دیکھو 250 بچوں کی جگہ 800 بچے رہتے۔ ایک بچہ ایگزام لکھ رہا تو اس کی اماں، بابا، بھائیاں، چنٹو، پنٹو، منٹو سب آ جاتے گھر تک، گھر سے لے کے ایگزام سینٹر تک۔ جہاں پر نمبرز کا جو ہے بورڈ لگا ہوا ہوتا، وہاں کینڈیڈیٹ بھی دیکھتے، بابا بھی، اماں بھی، وہ چپکے ہوئے رہتے۔ ایسا نہیں، آپ ڈیوریشن دیکھنا، گھر سے لے کر سینٹر تک جانے کے لیے آپ کو 15 منٹ لگ رہے، 15 پلس اور 20 منٹ ایکسٹرا لے لینا۔
کبھی بھی ایگزام جاتے وقت پیرنٹس، آٹو ڈرائیورس اسپیڈ نہیں جانا، مینر روی سے جانا، زیادہ اسپیڈ بھی نہیں، زیادہ سلو بھی نہیں. اس لیے 20-25 منٹ پہلے نکل جانا. فرسٹ ڈے تو آپ اور جلدی رہنا، اس لیے کہ آپ کو نمبر تلاش کرنا رہتا. نمبر آپ کو جو نمبر رہتا وہاں بورڈ پہ دیکھ لینا، روم نمبر 1، روم نمبر 2، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، لیفٹ، رائٹ، یہ سب لکھا ہوا رہتا اس پہ. آپ ایک مرتبہ دیکھ لیے، بورڈ کے پاس سے ہٹ جانا. اچھا جلدی جاؤ بولتے 1 گھنٹہ پہلے جا کے بھی نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ آپ کو باہر دھوپ میں ٹھہرنا رہتا. دھوپ میں ٹھہرنے سے آپ تھک جاتے، سویٹنگ، پسینہ آنے کی وجہ سے جو ہے جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی. وہاں کوئی سایہ نہیں رہتا آپ کو ٹھہرنے کے لیے. 10-15 منٹ پہلے سینٹر رہنا. 8:45 بجے کے بعد آپ کو ایگزام ہال کے اندر آنے کی اجازت دیتے. 9:30 بجے کے بعد ایگزام ہال میں انٹر ہونے نہیں دیا جاتا، ایگزام سینٹر کو لاک کر دیا جاتا. تو آپ ساری جو ہے لائف 10 سال 15 سال 15 سال کی عمر تک یا 16 سال کی عمر ہے بعض بچوں کی، یعنی 10 کلاس تک 10th کلاس تک جو پڑھے، اگر ایگزام سینٹر کو لیٹ چلے گئے تو فائدہ کیا ہے بولو؟ اس لیے ٹائم پر جایا کرو. سینٹر پہلے ویل ان ایڈوانس 2 دن پہلے دیکھ لے کر آیا کرو تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اب آپ جب ایگزام سینٹر میں چلے جاتے ہیں، سینٹر جانے کے وقت آپ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ روز 5 گھنٹے سوتے ہیں تو ایگزام کے دوران 6 گھنٹے سوئیے. آپ بولیں گے ارے سلا دے رہے کیا سارا؟ آپ بولیں نہیں. آپ جو 2 گھنٹے 30 منٹ 2.5 گھنٹے جو ایگزام لکھ رہے، وہ آپ کی اب تک پیدائش سے لے کے آج تک، یعنی ایگزام میں جو بیٹھے آپ، وہ لائف کے اوپر وہ 2.5 گھنٹے حاوی ہے. آپ مینٹلی فزیکلی فٹ ہونا کمپلسری ہے. آپ رات تمام جگے ہوئے ہیں، وہاں جا کے سونے کا ہے؟ بیڈ روم ہے کیا؟ وہ نہیں ہے نا. آپ لائف میں جتنا پڑھے ہیں وہ 2.5 گھنٹے کے اندر اپنی قابلیت کتنی ہے وہ بتانا ہے. اس لیے آپ مینٹلی فزیکلی تھکے ہوئے نہیں رہنا. اگر 9:30 بجے ایگزام ہے، 9 بجے گھر سے نکل جا رہی ہے، 8:45 بجے گھر سے نکل رہا ہے، 7 بجے اسٹڈی کلوز کر دینا. عموماً اسٹوڈنٹ کی عادت کیا رہتی؟ 9:30 بجے ایگزام ہے، ایسا کوشچن پیپر ہاتھ میں، ادھر گائیڈ ہاتھ میں. غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں. تھکا ماندہ رہا آدمی، مینٹلی ٹائرڈ رہا، سمجھو کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا، یاد ہے سبھی آنسر نہیں لکھ سکتے آپ. 7 بجے اسٹڈی کلوز کر دو، نہا لو، فریش ہو جاؤ، کچھ کھانا کھا لو. لائٹ ہارڈ ڈائٹ نہیں لینا، ڈائٹ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. کھانا کھا لے کے تھوڑی دیر ریسٹ لے لو، آنکھ بند کرو، پڑھو، تھوڑی دیر سو جاؤ، 10-15 منٹ ریسٹ لے لو، پھر فریش ہو جاؤ، ڈریس چینج کر کے سینٹر کو چلے جاؤ. عموماً ہوتا کہ آپ فل میک اپ کے اندر ماڈلنگ میں گئے، ایگزام نہیں لکھ سکتے. آپ فل میک اپ میں گئے تو میک اپ کو سنبھالنے میں ٹائم لگ جاتا. بالاں کدھر چلے گی، لپسٹک کدھر چلے گی، ان شرٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، شوز اینڈ ساکس الاؤ نہیں ہے ایگزام میں. لاسٹ ایئر سے یہ نیا رول نکالے تو شو پہن کر نہیں جانا، آپ ساکس پہن کے نہیں جانا. اگر پہن کے گئے تو گیٹ کے باہر ہی نکال دے کے آپ ویسے ہی سینٹر کے اندر داخل ہونا پڑتا. بہتر رہتا آپ چپل پہن لیجئے، سینٹر کو سمپل جائیے، کھانا کھا کر جائیے. اگر کسی کو چائے پینے کی عادت ہے چائے پی لیجئے، اچھا خاصا ریسٹ لے کر جائیے. یہ 2.5 گھنٹے تمہاری لائف کے امپورٹنٹ ہے، یہ 2.5 گھنٹے تمہاری لائف چینج کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے میں بار بار اسٹریس دے رہا ہوں، مینٹلی فزیکلی آپ فٹ رہنا، بیمار نہیں ہونا، نیند اچھی لینا، خالی پیٹ نہیں جانا، کچھ کھا کر جانا. کچھ کھا کے جاؤ بول تو خوب بھی نہیں کھانا، لمٹ میں کھانا. کھانے میں کیا کیا یوز کرنا اب سے یاد رکھ لو. تلی ہوئی بھنی ہوئی چیزیں نہیں کھانا، گوشت، مٹن، چکن. اب تو رمضان ہے، حریص فریز، پکوڑے پکوڑے سب بند. کب تک؟ ایگزام تک. اس کے بعد آپ کچھ بھی کھاؤ، آپ کو اجازت ہے. اس لیے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو دماغ خراب ہو جاتا، آپ بیمار ہو جاتے. آپ بیمار ہے، پڑھ نہیں سکتے، اسٹڈیز کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. پانی کی مقدار زیادہ استعمال کیجیے، کولڈ ڈرنکس استعمال نہیں کرنا، جنک فوڈ استعمال نہیں کرنا، ہوٹل کی غذا نہیں کھانا. پیرنٹ بھی بچہ ایگزام لکھ لانا بول کے لاڑ میں ہوٹل کا لا کے نہیں کھلانا. یہ دنوں کے اندر آپ وہ محبت کو تھوڑے دن اسٹاپ کر دو. ایگزام کے بعد آپ ہوٹل لے آ کھلاؤ اور کبھی لے آ کھلاؤ، کچھ بھی کھلاؤ، لیکن اب یہ دنوں میں لائٹ غذا دینا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا. سیزنل افیکٹ بھی بہت جلدی ہو جاتا بچوں کو، اس لیے صحت امپورٹنٹ ہے. صحت اگر خراب ہوگی تو اچھے ڈاکٹر سے آپ رجوع ہو جانا. اس لیے کہ یہ 2.5 گھنٹے جو بیٹھ رہے آپ 6 دن، وہ لائف کے اوپر ساری زندگی مرے تک اس کا اثر رہتا. اس کا ارے میں ایسا کرا تو ایسا رہتا تھا، ایسا کرنا تھا میں ایس ایس سی میں، وہ بیکار باتیں ہیں، بیکار خیالات ہے. جس وقت آپ کو ڈیسیجن لینا ہے اس وقت ڈیسیجن صحیح لینا چاہیے.
तब आप एग्जाम हॉल में दाखिल हो गए, एग्जाम जाने से पहले हॉल टिकट, अच्छे से 2-3 पेन, एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, एक घड़ी जो सादा है, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, हेडफोन्स अलाउ नहीं है, सेल फोन अलाउ नहीं है, ये सब नहीं ले जाना। ले जाके आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। पर्स डाल ले रहे, बैग डाल ले रहे, गाइड ले लेके जा रहे, क्या करते वहां? साल भर में नहीं पढ़े, 10 मिनट 15 मिनट पहले जाके वहां क्या पढ़ते? ये सब बेकार ख्यालात है। घर में 7 बजे क्लोज कर देना। अब आप बोलेंगे अरे 7 बजे कहीं क्लोज करना सर, अभी 9:30 बजे एग्जाम है ना। आप जब तक दिमाग को सुकून नहीं देंगे, वो दिमाग 9 सवा 9 बजे तक पढ़ते चले, समझो आप वहां जाके आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते क्वेश्चंस के ऊपर, आंसर्स के ऊपर। इसलिए आप थोड़ी देर रेस्ट ले लेना, दिमाग को सुकून देना। 7 बजे से पहले जितना पढ़ना है पढ़ लेना। उठो 4 बजे रात को, ताजुद पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआएं मांगो, राजी कर लो। 7 बजे तक स्टडी क्लोज। 7 बजे के बाद रेस्ट, पढ़ना कुछ भी नहीं, पढ़े सो रिवाइज भी नहीं करना, खामोश रहना। आप 2 घंटे दिमाग को रेस्ट दिए तो वो 2.5 घंटे आप एग्जाम लिखने के काबिल रहते। वरना क्या होता, रात तमाम जगे हुए रहे, थके हुए रहे, रात तमाम पढ़े आप, हैबत में नींद नहीं आई, हाँ खाना भी नहीं खाए, खाली पेट है, चक्कर आ रही, नींद आ रही, खत्म, लाइफ तबाह हो जाती है आपकी। इसलिए ये 2.5 आवर्स तुम्हारी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत अहम है। वो 2.5 आवर्स की आपको अहमियत कब मालूम होती? जिस दिन रिजल्ट आता। पॉजिटिव भी हो सकता, रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता। इसलिए ग़िज़ा सही लेना, नींद सही लेना, फ्रेश रहना, सेहतमंद रहना, ये आपके लिए कंपलसरी है। पेरेंट्स के लिए एक मशवरा है, बहुत सारे जगह मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, पेरेंट्स जो है बच्चे स्टडी करते रहते हैं, उन्होंने टीवी देखते रहते हैं या फोन देखते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता। बच्चे जो है साउंड कम करो, वो तो भाई यहाँ भी रहते, छोटे बड़े, उन्होंने टीवी में देखने में रहते, इन्होंने स्टडी करने में रहते, तो वो टीवी के साउंड में स्टूडेंट्स स्टडी नहीं कर सकते। 6 दिन एग्जाम हुए तक टीवी फोन अल्लाह के वास्ते बंद कर दो। तुम्हारी बच्चों की लाइफ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टीवी सीरियल से। खास तौर पर घरों के माहौल के अंदर टीवी सीरियल कंपलसरी, दुनिया अंगार लग जान दो हमारे सीरियल नहीं छोड़ते। ये दिनों के अंदर बच्चे की अपने लाइफ बनाने के लिए टीवी को अल्लाह के वास्ते बंद कर दो। फोनों के ऊपर फिल्म देखना, सीरियल देखना बंद कर दो। अब आइए सेंटर के अंदर जब चले जाते हैं आप रूम नंबर 1, 2, 3 में, तो आपको सेंटर के अंदर 2 चीजें दी जाती। एक है मेन आंसर बुकलेट, बोलते हैं इसको मेन आंसर बुकलेट, या बुकलेट बोले तो अरे बुकलेट नहीं है ना साहब, किताब की शक्ल नहीं है, मेन आंसर शीट, मेन आंसर बुकलेट है, या मेन आंसर स्क्रिप्ट भी बोलेंगे इसको। इसके अंदर क्या करना, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते नहीं बैठना, वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना बोल के ये वीडियो बना रहा हूं मैं आपको। जो जो चीजें अहम है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, गौर से सुनिए। ये मेन आंसर स्क्रिप्ट नंबर रहता, हर रोज आपको यहां पर स्टाम्प मारे हुआ रहता या फिर नंबर हाथ से लिखे हुआ रहता। 3 डिजिट्स रहते। सपोज आपको नंबर 1 रूम नंबर 1 में 1 फर्स्ट कैंडिडेट है, 001 आया समझो, वो नंबर आपके मेन आंसर। अगर ये बिलांक आ गया तो वो आंसर शीट आप वापिस कर देना। कल 001 आया था, मैं आज भी वही लिख लेता हूं, तो नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को मेन आंसर बुकलेट नंबर नहीं है तो वो मेन आंसर बुकलेट या मेन आंसर स्क्रिप्ट जो है वापिस कर देना। ये सेम भी आ सकता, अलग अलग भी आ सकता, उसकी आप फिक्र मत कीजिए। ये मेन आंसर स्क्रिप्ट नंबर रहता। यहां है फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, आपकी नहीं, जो रूम में है उन्हें साइन करता। अब ये बाकी क्या चीजें, सब्जेक्ट, पेपर, ये लिखे तो भी चलता, नहीं तो भी चलता। यहां है कितने एडिशन लिए वो रहता। तो इसके अंदर आपको ये देखना है इंपॉर्टेंट। ये होने के बाद आप क्या करना, ये जितना हिस्सा पैड में जा रहा इतना हिस्सा मोड़ देना, ऐसा फोल्ड कर लेना। ये मार्जिन के लिए मोड़ देना। अब कभी पेज टर्न करे तो इधर भी मार्जिन देना रहता, ये हो गया। ये पूरा फोल्ड कर लिए, लास्ट तक, एंड तक नहीं लिखना, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देना। पेज टर्न कर लिए आप, ये है अब आपका मेन आंसर स्क्रिप्ट जहां से लिखना है। यहां क्वेश्चन नंबर डालने के लिए मार्जिन है, आंसर पूरा यहां तक लिखना। कहां तक, ये एंड तक लिखते जाना, लास्ट बॉर्डर तक नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना बाद में आपको बताऊंगा मैं। इस तरह ये आंसर से लिखना, नेक्स्ट पेज, फिर ये लास्ट पेज। उर्दू मीडियम स्टूडेंट इधर से शुरू नहीं करना, उर्दू मीडियम वाले भी यहां से, तेलुगु मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, पूरे ऐसा जाना,
लेफ्ट टू राइट ऐसा चले गए, ये लिखना। यहां उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या करना, यहां डालना आप क्वेश्चन नंबर, इधर लिखना आंसर उर्दू में। इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, मराठी जो भी लिख रहे हैं यहां लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर, आंसर इधर देंगे। तो ये मार्जिन यहां लिखने के वास्ते है, ये मार्जिन क्वेश्चन नंबर के लिए है, उर्दू मीडियम के लिए ये मार्जिन है, बाकी का इधर आप पूरा लिखेंगे। उल्टा जाना कभी भी, ये बैक होने के बाद आप मेन आंसर बुकलेट खत्म हो गया तो एडिशनल मांगे तो देते आपको, आपके नंबर पर जितने एडिशनल मांगे उतने देते। खराब होगा तो भी अटैच कर देना, रंग होगा तो भी अटैच कर देना, फाड़ दे के नहीं फेंक देना, खा जाना नहीं, घर को नहीं ला जाना, डस्टबिन में नहीं डालना, ये रिकॉर्ड रहता पूरा। मेन आंसर बुकलेट नंबर की तरह यहां पर भी सीरियल नंबर रहता, फिर यहां पर सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर रहता, दो ही चीजें रहती। अब आइए OMR शीट जो दिया जाता कलर में रहता, मैं जिराक्स में बता रहा हूं कलर में है वहां पर, फिलहाल आप जिराक्स में देख लीजिए। ये 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर आपको क्या क्या चीजें करना है वो जरा गौर से सुनिए। आंसर बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरियल नंबर, यहां आपको जो मेन आंसर बुकलेट दिए थे या आंसर स्क्रिप्ट दिए थे उस पे जो नंबर था 001, 012, 03, 420 जो भी नंबर था ये बॉक्स में डालना है आपको। सपोज आपको 001 आ गया तो पहले बॉक्स में 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1। सपोज आपको 420 आया 420, 540 आया 540। ये मेन आंसर बुकलेट या स्क्रिप्ट, आंसर स्क्रिप्ट पे जो नंबर है वो नंबर पार्ट 1 में डालना है। गौर से सुनो, ये बहुत अहम है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एडिशनल बुक अटैच कब लिखना, एग्जाम खत्म होने के बाद लिखना। नहीं लिखे तो फिक्र नहीं करना, अरे मैं नहीं लिखा क्या होता कि कुछ भी नहीं होता, वो जो इन्विजिलेटर है वो सबमिट करते वक्त लिख देता हूं, उसको नहीं, ये मेन देखने का आंसर स्क्रिप्ट नंबर। नेक्स्ट है रूम नंबर, एक मरतबा आपको जो रूम अलॉट कर दिए वही रहता, 99% आपका रूम चेंज नहीं होता। अगर कुछ हालात खराब है, रूम जो है डैमेज है या अंधेरा है, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया जब रूम चेंज होता, वरना नहीं होता SSC में। तो इसके अंदर क्या लिखे आप, पहली लाइन में एक आंसर स्क्रिप्ट नंबर लिखे, दूसरा रूम नंबर लिखे, ये लास्ट में कितने एडिशनल लिए वो फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहां है आपकी सिग्नेचर, फिर यहां इन्विजिलेटर की साइन है, ये डेटा जो दिया गया आपका नाम है इसके अंदर, फिर रूल नंबर है प्रिंटेड, डेट ऑफ बर्थ है, पेपर कोड है, मीडियम क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटर क्या है, ये सब प्रिंटेड रहता। हॉल टिकट में जो है वो सेम रहता है। यहां पर कभी रॉन्ग है तो इन्विजिलेटर को बोलना रॉन्ग नहीं आता, क्योंकि हॉल टिकट जब रॉन्ग होता तो आपके हेडमास्टर ये लिख के भिजाते सेंटर को खाली है। और एक अहम बात, ये बार कोडिंग पेपर रहता, खाली नहीं, खाली बैठे बैठे क्या करते पेन लेके लकीरा मारते, ये डैमेज नहीं करना। यार ये खाली लाइना कहीं को मारा रे, काला कर दे कर रखा, मैं भी 4 लाइना मार दूं, नहीं, ये बार कोडिंग है, इसके ऊपर ही आपका जो है पूरा डाटा रहता, इसके अंदर आपका पूरा बायोडाटा जैसा रहता वैसा रहता, शिजरा रहता पूरा। अब आ जाइए पार्ट 2 OMR शीट के लिए। OMR शीट में यहां सिर्फ आपको 2 ही काम करना है, मेन आंसर बुकलेट सीरियल नंबर लिखना है, ये आंसर बुकलेट पे जो नंबर था वो नंबर पार्ट 2 में लिखना है, नंबर ऑफ एडिशनल कितने लिए ये लास्ट में लिखना है। ये जो है ये आपके काम का नहीं है। जब पेपर करेक्शन करते यहां मार्क्स डालते, आप ही एडवांस में डाल लेकर रख लेना, ये आपके काम का नहीं है, ये करेक्शन के लिए। पार्ट 3 में आप हाथ भी नहीं लगाना, ये काम का नहीं है। करेक्शन करते वक्त ये फाड़ देते, ये आपके आंसर इस को अटैच रहता। कैसा रहता, ये है मेन आंसर बुकलेट और ये है, ये बड़ा है जिराक्स, फिर भी देख लीजिए, ये ऐसा पकड़ना, यहां पकड़े तो जरा ये मेन आंसर इस से जरा ऊपर रखना, इतना बड़ा नहीं रहता क्योंकि जिराक्स है, बता रहा हूं मैं आपको, मेन है वहां पर। तो यहां क्या होता है, यहां स्टेपलर से पिन मार देना, यहां एक पिन मार देना, इसको खराब नहीं करना, डैमेज नहीं करना, पसीने के धब्बे नहीं लगाना, ये नीट रहना। ये तुम्हारे पूरी SSC का एक जो पेपर लिख रहे हैं ये पूरी लाइफ है तुम्हारी। यहाँ एक स्टेपलर से पिन मार देना, पहले दिन बता देते, या तो इन्विजिलेटर डालता या स्टाम्प मार देता स्टेपलर से, या फिर अटेंडर्स आके मारते। सेकंड डे से सब आपको करना रहता। ये मेन आंसर बुकलेट के साथ OMR शीट अटैच कर दिए, 2 पिन मार दिए, स्टिकर्स देते आपको 2, आधा यहां लगाना, बाहर रहता थोड़ा आधा,
आधा इधर लगा देना, आधा बाहर रहता। कहां लगाना? जहां पिन मारे पिन के ऊपर चिपकाना उसको, फिर जो बाकी का हिस्सा है पीछे फोल्ड कर देना, यानी जो पिन आप मारे हैं स्टापलर से उसको लॉक कर दिए दूसरे मानों में। फाड़े तो पेपर के साथ फट जाता है, पिन नहीं निकाल सकते, डैमेज नहीं कर सकते। इस तरह अब ये OMR शीट इसको अटैच होने के बाद ये जरा केयरफुल रहना, ये 3 पेज लिख रहे नहीं, बहुत केयरफुल रहना। अब आप ये हो गया OMR शीट और मेन आंसर स्क्रिप्ट। क्वेश्चन पेपर दिया जाता आपको, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए, 15 की जगह आप 20 मिनट लो। वो 15 मिनट जो आप पेपर पढ़े हैं वो पूरे बाकी के 2.5 घंटों के ऊपर उसका असर रहता। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आंसर क्या लिखते? इसलिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने समझने के लिए 15 मिनट्स का टाइम दिए, 1 मरतबा 2 मरतबा। अच्छा, वहां स्पीड पढ़ने का कंपटीशन है क्या? नहीं है। आप रुक रुक के इत्मीनान से समझते हुए पढ़ना है क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना। पहली जंग अजीम पूछा, वहां आप पहली जंग आजादी ही लिख रहे, पूरा एग्जाम होने के बाद याद आ रहे पहली जंग अजीम पूछा था सोशल में, मैं जंग आजादी 15 अगस्त की पूरी तकरीर लिख दे के आ गई बोलते। ऐसा नहीं करना। क्यों? आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़े, समझे नहीं थे, इसलिए उसका आप जो है कीमत भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसा जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन से अच्छा पढ़ लेना। अब सपोज आप क्वेश्चन नंबर 8 करना चाह रहे, समझो 8वां क्वेश्चन कर रहे। अब क्योंकि आप पहला क्वेश्चन है आपके लिहाज से, अब आंसर शीट पे लिखना है। यहां क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है वो डालना, अगरचे कि तुम्हारा वो पहला क्वेश्चन है। सीरियल ऑर्डर में करना, फर्ज, सुन्नत, नफिल, वाजिब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट लिख सकते, एक्यूरेट आंसर लिख सकते, बगैर मिस्टेक के लिख सकते, वो आंसर लिखना। इसलिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन है। अब यहां जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा ना, बाकी के आप 10 पेज लिखो, ये इंप्रेशन रहता, ये काला मैला होगा, समझो गलीज होगा, धब्बे लगा दिए, पूरे पेपर के ऊपर भी वही इमेज रहता। हालांकि पीछे के पेज साफ होंगे, इसलिए फर्स्ट पेज को आप गंदा नहीं करना। ये तुम्हारा आईना है, सामने वाला ये देख के पहचान लेता आप कितने लेवल पे है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर में जो नंबर है वो नंबर डालना। अगरचे कि तुम पहला क्वेश्चन लिख रहे, लेकिन वहां 7वां क्वेश्चन है, 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वही नंबर यहां डाल आंसर लिख देना। पॉइंट वाइज आंसर लिखना बेहतर रहता। पैराग्राफ वाइज लिख रहे तो छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखना। पैराग्राफ से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा आंसर रहता? पॉइंट वाइज। इसलिए कि करेक्शन के लिए की दी जाती, उसमें पॉइंट्स रहते। अब अगर तुम पूरी कहानी लिख दिए, समझो करेक्शन करने वाला पूरी कहानी के बजाय उसके की में दिए गए पॉइंट्स तलाश करता, कचरे में जैसा ढूंढते नहीं वैसा पूरे कचरे में ढूंढना पड़ता। तो बेहतर क्या रहता? पॉइंट वाइज आंसर लिखो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन बस। अब वुमन स्टूडेंट क्या करते? अरे पेपर तोलते रहे, ऐसा झूठे बात है, गलत बात है। देखते इतना बंडल बनाए, यहां तो पास कर देते 4 पेज और यहां तो फेल कर देते, यह भी गलत बात है। सुबह में 20 पेपर देते, 9:30 बजे से 1 बजे तक करेक्शन करने वाले को, फिर दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक फिर 20 पेपर देते। उन्हें पूरा पढ़ता, मेन पॉइंट्स देखते, खास तौर पे लैंग्वेजेस में राइटिंग देखते, ग्रामर देखते, सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट है नहीं देखते, ये लैंग्वेजेस में होता। ऑप्शनल के अंदर आपको राइटिंग को उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। सिर्फ टू दी पॉइंट आंसर, मीनिंग वही निकल रहे नहीं निकल रहे ने, जो बोलना चाह रहा हुआ समझ जाते, उतने मार्क्स देते। मैथ्स के अंदर तो स्टेप्स रहते, वो जिस स्टेप सब मीडियम वाले वही लिखते हैं, उसके बारे में आप ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंसर साहब नीट लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। एक आंसर सपोज 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4 पॉइंट्स लिख दिए, इनफ। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एक 8 लाइन लिख दिए, लॉन्ग है 10 लाइन लिखे, 10 पॉइंट्स लिखे, इनफ। उससे ज्यादा 4 पेज लिख रहा हूं, 5 पेज लिख रहा हूं, ऐसी मोतेबरी करके खाली 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने में 2 घंटे कर दिए, समझो आप, तो अकलमंद बोलना क्या आपको? पूरी बुक की बुक लिख दे रहे, ऐसा नहीं है। मार्क्स के लिहाज से आंसर लिखना, आंसर टू दी पॉइंट होना, खाली फेंकना नहीं, फेंकम फाकी के मार्क्स नहीं रहते। एक आंसर कंप्लीट होने के बाद ऐसा लाइन मारना, मगर थोड़ी जगह रखना। क्यों? अक्सर स्टूडेंट को लड़ाई होने के बाद गुस्सा आ जाता,
अरे अरे वो मेन पॉइंट था नहीं, वही छूट गया। अब अच्छा नीट लिखे तुम, अब वो एक पॉइंट और बहुत, अरे वो पूरे क्वेश्चन की जान है भाई, वो आंसर की वो लिखना था, अब वहां जगह नहीं रहती, इसलिए एक दो लाइन की जगह छोड़ देना ताकि बाद में याद आएगा तो बम डाल सकते हैं, समझ रहे? लास्ट एंडिंग तक नहीं लिखना। करेक्शन को जब देते टीचर्स को तो उन्हें गिन लेते धागे पकड़ के, ऐसा पटक लेते, पूरा हट जाता, OMR शीट डैमेज हो जाता। इसलिए OMR शीट को कैसा लगाना बोला मैं, 1/2 इंच ऊपर लगाना, लास्ट मोमेंट तक नहीं लिखना यहां तक। अब जैसे ही ये मेन आंसर बुकलेट खत्म हो गया, आपको एडिशनल शीट देती है, आपका वहां रूल नंबर लिखे हुआ रहता, वहां कितने लिए 1 प्लस 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 लिखते जाता, 1 प्लस 1 प्लस करके आखिर में टोटल 10 लिए, 12 लिए, 10 20 लिए वो रहता। आप जैसे मेन आंसर बुकलेट हो गया, एडिशनल लिए इसमें नंबर 1, दूसरा एडिशनल लिए नंबर 2, तीसरा लिए नंबर 3। क्यों ये नंबर इसलिए डालना रहता, इसको तो मेन आंसर शीट के साथ ये अटैच है OMR शीट। अब यहां आंसर खत्म हुआ, इसका आधा आंसर इधर है, अब पढ़ते बैठते यहां पर, ये आधा आंसर कहां है, 10 एडिशन लिए तो 10 एडिशन आप पूरे फैला कर रखते नहीं, आप नंबर 1 डाल दिए थे ना, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और क्या 5 से ज्यादा क्या लिखते थे, हो गया। नंबर डालने में ये फायदा है, टाइम बचता, टाइम बचाने की कोशिश करना, वहां टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। अब जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, जो अच्छा आता, फुल कॉन्फिडेंट है कि आप ये आंसर विदाउट मिस्टेक्स लिखते, वही लिखना पहले। अब फिजिकल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, 3 + 3 + 2, 3 + 3 6 + 2 8 क्वेश्चंस लिखना है, एक ऑप्शन छोड़ देने का है। क्या करना, जो अच्छा लिखे, सपोज 6 क्वेश्चन लिख दे, क्या है, अभी 2 क्वेश्चन छूट जा रहे, क्वेश्चन से नहीं छोड़ के आना, पूरे आंसर लिख के आना, हो सका तो बाद में वक्त बचा तो एडिशन जो चॉइस में था वो भी करके आना। एडिशनल बोल के नहीं लिखना, उसको एक्स्ट्रा बोल के नहीं लिखना, वो लिखना कब लिखना, जब आप 3 + 3 + 2 हो गया, उसको एक मरतबा वेरीफाई कर लिए, पूरे आंसर्स करेक्ट है, अब खाली बैठे, छोड़ देने से बेटर क्या करना, वो भी अगर आंसर आता तो लिखना। क्या फायदा हुआ उसका, सपोज एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लिख दिए, एक के 3 मार्क्स आए, एक के 2 मार्क्स आए, ये जो एक्स्ट्रा में लिखे नहीं आप, उसके 4 के 4 आए समझो, तो जो ज्यादा मार्क्स है उसको काउंट कर दे। मगर कब, जब पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया, 3 3 2 हो गए, एक्स्ट्रा पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद लिखना। सपोज 6 क्वेश्चन लिख रहे, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आपको वो भी नहीं छोड़ के आना, आंसर लिखना तो लिखना, क्या लिखना आ रहा नहीं तो क्या लिखना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसको सोचना ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से, कौन से चैप्टर में से है, सपोज वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से है या केमिकल बॉन्डिंग में से है। अब टू दी पॉइंट आंसर नहीं लिख सक रहे, पिन पॉइंट नहीं हो रहा, आंसर याद नहीं आ रहा, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो मेन पॉइंट्स उससे रिलेटेड याद आ रहे लिख दो, 4 लाइन की जगह 8 लाइन लिख दो। वो उन्हें करेक्शन करते वक्त क्या होता, 2 पॉइंट मिल गए तो 1 नंबर मिल जाता ना। समटाइम्स क्या होता, पूरे आंसर करेक्ट है, आपका इंप्रेशन करेक्शन करने वाले के ऊपर अच्छा है, अरे पूरे आंसर आज करेक्ट है भाई बल्कि, और रो में चले भी जाते हैं, 100% मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह आप जो है कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, क्वेश्चंस नहीं लिखना, सवालात लिखने का कंपटीशन नहीं है, क्वेश्चन लिखने का, से बुलाए क्या आपको, अरे प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर दिया ना, और इससे अच्छा क्या लिखते आप, आपको आंसर लिखना है 2.5 आवर्स के अंदर, सिर्फ आंसर लिखना, बट क्वेश्चन नंबर डालना नहीं भूलना चाहिए, क्वेश्चन नंबर डालना नहीं भूलना, क्वेश्चन नंबर बराबर लिखना, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना, आया तो भी लिखना, नहीं आया तो भी लिखना, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना। दिमाग का इस्तेमाल आप कब कर सकते, मेंटली फिजिकली फिट है, आप जो रट के गए थे या समझ के गए थे, लिखने के काबिल नहीं है, 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप थके हुए नहीं है, नींद अच्छी हुई, पेट भी खाली नहीं है, चलो थोड़ा बहुत पेट में है, कुछ ना कुछ सुकून में है आप, तो आप क्लास में जो लेक्चर देते, आपके टीचर जो एक्सप्लेन करते, थोड़ा वो क्लास में बैग चले गए, समझो अरे फलाने वक्त ये टीचर ये समझाए थे, ये सर समझाए थे, उस दिमाग पे जर्रा बार डाले तो याद आ जाता, वो आप मेंटली फिट है, नींद पूरी लिए थे होता। नींद हैबत में नहीं आती, मगर आप सोना कंपलसरी है। देखो हैबत को दूर करने का एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। हैबत कहीं को होती, क्या होता कि क्या है कि पास होते कि फेल होते कि,
दो चीजें हैं दुनिया में, या तो कामयाब होते हैं या तो नाकाम होते, पास तो भी होते फेल तो भी होते। उमन क्या होता, कमिटमेंट होते। कैसा, अरे तू पास हो गई तो आधा तोला सोना दिला तो बोले मामा, अब बच्ची वही फिक्र में रहती। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। आपकी तकदीर में लिखा हुआ है पास तो बराबर पास होते, फेल होना का है तो फेल ही होते। सारी मखलूकात मिलके तुम्हारे पास करना चाह रही है, अल्लाह ताला तकदीर में फेल बोल के लिखा, फेल होते। तुम्हारी तकदीर में पास लिखा हुआ है, पूरे लोग मिलके फेल करना चाह रहे तब भी फेल नहीं कर सकते, मगर तकदीर कॉन्फिडेंशियल है। तकदीर में ऐसा लिखा हुआ होगा, अरे बंदा मुझे कामयाबी के लिए मेरे से इल्तिजा करे, दुआ करे तो मैं कामयाब कर देता हूं, अल्लाह ताला ऐसा लिखा होगा। तुम मांगे से नहीं, पास नहीं होते। इसलिए दुआ दवा दो चीजें होना। अभी तो सीजन चल रहा दुआओं की कबूलियत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। एक, रोजदार की इफ्तार से पहले। दूसरा, आदिल बादशाह की, अल्लाह को मदद के लिए पुकारे तो भी अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता। तीसरा, मजलूम की बद्दुआ। ये दो पहले के, इसके अंदर क्या है, ईमान है। तीसरा, मजलूम की बद्दुआ, आप मेरे ऊपर जुल्म कर रहे, अब मैं मुसलमान हूं, हिंदू हूं, सिख हूं, कुछ भी नहीं, मेरे ऊपर आप नाहक जुल्म कर रहे हैं, और मैं अगर अल्लाह ताला को पुकारा तो मेरे में अर्श में किसी किस्म का फायदा नहीं, पर्दा नहीं रहता, अल्लाह ताला मेरी वहां जो है मदद के लिए हाजिर हो जाता। तो मजलूम की बद्दुआ से बचना। अब रोजेदार की इफ्तार से कबल दुआ कबूल होती, यकीन के साथ मांगे तो होती कि नहीं होती, मतलब नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा इरादा नहीं है, होती कि नहीं होती। अब दुआ मांग लेना तहज्जुद के वक्त और इफ्तार से पहले, ये अच्छा मौका है, अल्लाह को राजी कर लो। तुम्हारी तकदीर में अगर नाकामी लिखी हुई है, अल्लाह ताला नाकाम लिख दिया, तकदीर का लिखा हुआ कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। बट दो चीजें तकदीर के अंदर दखल अंदाज होती है, एक है दुआ, दूसरी है नजरे बद। तो दुआ से आपकी तकदीर को तब्दील कर ले सकते। अब दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, ऐसा नहीं। दुआ पूरी जुस्तजू के साथ गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह को राजी करना। छोटे बच्चों को देखो, एक 2 रुपए के चॉकलेट के वास्ते माँ बाप नहीं दिला रहे तो सर पटकता, नाश्ता पूरा बैकाट कर देता, बहरहाल अम्मा बाबा को राजी कर लेता। ईद के वक्त कपड़े खरीदते आप, माँ बाप जो है 4000 का दिलाना चाह रहे, आप 6000 का पसंद आया समझो, माँ क्या करते, बैकाट करते, खाना नहीं खाते, अम्मा बाबा को राजी कर लेते, चलो कुछ भी हो जाओ। ऐसा ही अल्लाह के सामने आप बार बार गिड़गिड़ाना, तन्हाई में दुआ करना। तन्हाई में की हुई दुआएं पूरे सुकून के साथ की हुई दुआ कबूल हो जाती। जल्दी में, जल्दबाजी में दुआ नहीं करना। अल्लाह को राजी कर लो, और जो है अच्छी मेहनत करो। मेहनत करने वालों की मेहनत को अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देता। दुआ दवा, सिस्टमेटिक स्टडी प्लस अल्लाह को राजी, ये दो चीजों को अच्छी तरह याद रखो। इसलिए ही बच्चों से खिताब में अल्लामा इकबाल वाले, मिल नहीं सकती निकम्मों को जमाने में मुराद, मिल नहीं सकती निकम्मों को जमाने में मुराद, कामयाबी की हो ख्वाहिश तो मेहनत चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला जो बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं एसएससी का, उनको कामयाबी से हमकिनार करे, आप अच्छे से अच्छे निशाना से कामयाब हो जाए, मेरी ये दिली ख्वाहिश है। और अल्लाह से जो है दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों को दूर करे और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। खुदा हाफिज़।